नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉब्लम सेट 4A फाइनेंशियल प्लानिंग फोर्थ लेसन अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड मास्टर बोर्ड. So let's start from the question number 1. MCQs, multiple choice question. Choose the correct alternative from the given options. Okay, so rate of GST on essential commodities is okay, it is 0. Okay, आपकी essential commodities है उनके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट रेट नहीं लगाती. जैसे आपकी खाने की चीज़ें रहेंगी, जो अनाज रहते हैं आपके, जैसे इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो कि देर इज 0% ओके इंटरेस्ट रेट. ओके, दिस इज फर्स्ट. द टैक्स levied by the central government for the trading within the state is okay, it is a CGST, central government. okay, रहता है CGST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, जो गवर्नमेंट लगाती, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, जो अपने स्टेट के अंदर के ट्रेड के ऊपर लगाती होगी. तो GST system was introduced in our country from 1st July, okay, 2017. okay, this is the correct option, 1st July. okay, it is from the 1st July 2017. The rate of GST on the stainless steel utensil is 18%. The rate of state GST, yes, GST, it is always half of the total GST. okay, so if the rate of GST is 18%, then the half is SGST and half is CGST. okay, so 9%. In the format of GSTIN, there are total dot alpha numericals. okay, there are total 15 alpha numericals. okay, 15. okay, पैन कार्ड रहता है आपका और आपको GSTIN दिया जाता है. ओके, सो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. ओके, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स अनदर रजिस्टर्ड डीलर टू द अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST, देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म एज बिजनेस टू बिजनेस, B2B. ओके, और वही अगर बिजनेस टू कस्टमर एक टर्म रहती है, अगर कस्टमर को बेचा जाए तो बिजनेस टू कस्टमर रहती है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज MCQ क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, because this lesson, if you go very carefully through the all points given from this lesson, then you can easily understood what are the content which is given in this lesson. okay, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने अभी सॉल्व किया. अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. ओके, तो मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसको मैं अभी सॉल्व करूंगा. ए डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन शो पीस ऑफ ₹25,000. GST of 28% was charged on the discounted price. Find the total amount shown in the tax invoice. What is the amount of CGST and SGST? We have to find CGST and SGST. So we'll solve this. okay, तो मेरे पास है फर्स्ट, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे. द प्राइस ऑफ एन शो पीस. ओके, फर्स्ट प्राइस of a showpiece. okay, whatever the showpiece or article is there, its price is given ₹25,000. okay, and discount. okay, discount GST. okay, 10% discount. okay, therefore discount हम लोग निकालेंगे discount amount. okay, amount of discount or discount amount. okay, 10% of this total price. okay, इसको सॉल्व करेंगे. 10 अपॉन यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 25 एंड 000, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरी अमाउंट बनेगी 2,500. ओके, दिस इज डिस्काउंट. ओके, सो नाउ डिस्काउंट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट. ओके, हम लोग को डिस्काउंट निकाल देना चाहिए ताकि हम लोग को रिमेनिंग. सो हम लोग को क्या बोला है, 20 चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. ओके, सो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. ओके, प्राइस ऑफ a showpiece. okay, after discount, after 10% discount. okay, 10% discount. okay, is equal to, I will get this 25,000 and minus this 2,500, so I will get ₹22,500. okay, so now there is the 28% GST on this amount. okay, so GST, okay, is equal to 28% of this 22,500. okay, so I have to solve this. 28 upon, I will write 100, 22,500. okay, so now this 2 zeros will get cancelled. now 28 into 2 25 हम लोग को करना पड़ेगा. इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. 225 into 28. okay, मैं यहाँ रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ. 8 5 is 40. I will take 0, 4 is remaining. 8 2 is 16 and 420. again I will take 1. okay, 2
8 to the 16 and to 18. Okay, now take 0, 5 to the 10, 1 carry. Okay, then 5 and this is 4. Okay, 0 0 and this is 3 and 6. Okay, 6300. Okay, so it is rupees 6300. Okay, so this is the GST. Okay, this is the GST. Okay, now the rough work I will just erase it, and okay, I will continue my question. Okay, now you please you recheck this. Okay, is it correct or not? Okay, so GST, I got the amount of GST, therefore I know the total amount shown in the invoice tax. Therefore the total amount of a show piece, okay, in a tax invoice, okay, is equal to rupees 22 and 500 and rupees 6300. Okay, we need to add this. Okay, now see that this is the 8. Okay, this 2 zeros remaining as it is, and now this is a 6 and to 9. Okay, 6 and this to 9 and this is 2. I think I need to check it again, because I think this is the, okay, this calculation I need to check. 1 second. Okay, so it is correct. Actually it is 28,800 actually. Okay, it is, because 6 plus 2 it will be 8. Okay, now the total amount of a show fees in a tax invoice I got this 28,800 that customer need to pay, but we have to find CGST and HGST. Okay, so therefore CGST is always GST upon 2. Okay, this is formula actually. Therefore CGST I will get, this is 6300 upon 2, so it is rupees. Okay, now see, this is 3 and this is 1 and this is 5 and 0. Okay, 3500. Okay, therefore CGST is equal to SGST. Okay, this is formula actually. Therefore SGST is also rupees 3150. Okay, so you got this both. Okay, SGST and CGST. Okay, so now in this way you have to solve this, and finally you have to rewrite the solution. Okay, finally you have to rewrite the solution, और लास्ट में आपको लिखना है therefore solution. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore आंसर बोलते हैं हम लोग उसको, सॉल्यूशन बोलते हैं 1. द टोटल प्राइस ऑफ शो पीस with GST is equal to rupees 28,800, and second मेरे पास आएगा GST is rupees 6,300. for मेरे पास आएगा CGST is equal to rupees 3,150, and okay, this is third one, this is third, and fourth आएगा मेरे पास SGST rupees 3,150. So in this way you have to write this. Okay, आपको इस तरह से लिखना है. You will write, or you can write better than this. Okay, this is possible for you. Okay, whenever you are going to write on the notebook, you try to write at your best. And this is the question number 2. We have solved it, and now we are going to solve question number 3. Okay, so we'll solve the next problem, problem number 3. In this problem, a ready-made garment shopkeeper gives 5% discount on the dress of rupees 1,000 and charges 5% GST on the remaining amount. Then what is the purchase price of the dress for the customer? You have to find the purchase price. I am writing solution here. First, given what is the price of the dress. Okay, price of the dress, it is given rupees 1,000. Second, discount is given. Okay, discount amount निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली. Okay, 5% of 1,000. Okay, it is given. So 5 upon 100 into 1,000. So these two zeros get cancelled. So it is rupees 50. Okay. So now taxable amount निकालते हैं. थर्ड taxable amount. So taxable amount जो भी हम लोग को मिला है डिस्काउंट उसको माइनस कर देंगे. रुपीज़ 1,000 minus 50. Okay, so I'll get this rupees 950. Okay, this is taxable amount. Now GST. Okay, GST निकालेंगे. फोर्थ GST. Okay, GST. Okay, 5% of this 950. Okay, it is 5 upon 100. Okay, 5 upon 100.
इंटू ओके दिस 950 ओके चलो करते हैं, इसका जीरो कैंसिल कर देते हैं तो ये 9.5 आ जाएगा। ओके दिस इज 9.5 ओके। सो 5 इंटू 9.5 इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा लिखेंगे हम लोग। 5 5 5 लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट भी देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा। 5 9 45 एंड 2 47 ओके। सो ये मेरी अमाउंट है जो मेरे पास जीएसटी। ओके सो फिफ्थ आएगा मेरे पास द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। ओके देयरफॉर द purchase price okay the purchase price of the dress for the customer okay for the customer is equal to okay this amount taxable amount plus GST okay जो भी GST लगाया। सो 950 प्लस दिस 47.5, चलो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। सो ये 0.5 एज इट इज़ रहेगा, 7 एंड दिस 0 7 ही रहेगा, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 9 ओके। रुपीज़ 997.5 इसको 50 कर देते हैं हम लोग ओके एंड 50 पैसे ओके। सो उसको इतने अमाउंट पे करनी पड़ेगी ओके। तो ये इतना ही सोल्यूशन, इससे बड़ा कोई लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज जीएसटी ओनली इज गिवन 5%. So there is no need to separate GST in CGST and HGST. Okay, you can directly calculate this. Okay, so this is the question number 3. We have solved it, and now we are going to solve question number 4. Okay, so we'll solve the question number 4 and 5. Okay, a trader from Surat, Gujarat sold cotton clothes to a trader in Rajkot, Gujarat. The taxable value of cotton cloth is rupees 2.25 lakhs. Okay, what is the GST at 5% paid by the trader in Rajkot? Okay, तो ये राजकोट वाला ट्रेडर कितना जीएसटी पेड किया है हम लोग को निकालने का है। बट फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू लिखेंगे हम, टैक्सेबल फर्स्ट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन क्लोथ्स ओके इज इक्वल टू 2.25 lakhs okay, rupees 2.25 lakhs. Okay, now what is the rate of GST? Therefore GST okay, GST is equal to 5% of 2.25 lakhs okay. So I'm simply writing this 5% of okay, one second, we'll write this into the number form 2.25 lakhs okay. So 1 lakh there are 5 zeros, don't forget okay, 2 so 25 and this 3 zeros okay. So 1 lakh 5 zeros, so this is 5%, so 5 upon 100 into 2 to 5 and 000, so these 2 zeros will get cancelled. Now do the calculation, 5 0 will be as it is, 5 5 is 25 okay, 2 is remaining, 5 2 is 10 and 2 22 12 2 okay, and this is one second, this will be 5 5 is 25 okay. So 5 is here, I will do here 2 to 5 into 5, 5 5 is 25, 12 are 2 carry 1, 5 2 are 10 and 1 11 okay. So it is 11,250 okay, maybe I think okay, one second ओके। सो हम लोगों ने एक गलती किया, मतलब यहाँ पे मुझे 2.5 लैक्स है ओके, 2.5, सो यहाँ पे 2.25 नहीं 2.5 लैक्स है ओके, 2.5 लैक्स ओके, यहाँ पे 2.5 लैक्स है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, आई हैव रिटन आई थिंक सो ओके 2.5 लैक्स है ओके, सॉरी। सो ये आएगा 2.5 मीन्स 2 लाख एंड 50,000, तो ये आएगा राइट अभी 2 लाख, this is 2 and this is 50,000 okay. So ये सही okay, now 2 0 get cancelled, so obviously this 5 and 5 and this 2 zeros will remaining as it is, and this is 12 okay. So 12,500 okay, GST okay. So what is asked, what is the GST at 5% paid by the trader in Rajkot? Therefore the GST paid by the trader in Rajkot, by the trader in Rajkot
Okay, Rajkot is rupees 12,500. Okay, this is the solution. Okay, so there is 2.5 lakhs. Okay, ये एक थोड़ा सा मतलब रॉन्ग लिखा था नंबर, इसलिए रॉन्ग आ गया. नाउ कम टू द फिफ्थ प्रॉब्लम. श्रीमती मल्होत्रा. ओके, श्रीमती मल्होत्रा purchase solar panels for the taxable value of rupees 85,000. She sold them for the rupees 90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC of the Srimati Malhotra. What is the amount of GST payable by her? Okay, तो ये निकालना है मुझे. तो यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे. ओके, द फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू. ओके, टैक्सेबल वैल्यू 85,000. ओके, फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू. ओके, rupees 85,000. Okay, therefore ITC means input tax credit. Okay, it's called the input tax credit. Input tax credit. Okay, इसको ही बोलते हैं ITC. 5% of this 85,000. Okay, because 5% GST is paid. Okay, so she purchased by 5% GST. Okay, so 85,000. These two zeros will get cancelled. Now 1 0, then 5 5 is 25 and 42. Okay, तो ये आएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके, सो 4,250 इनपुट टैक्स क्रेडिट. अभी आउटपुट टैक्स जो बोलते हैं हम लोग, वो जो जिसको बेचते हैं वो पे करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. ओके, तो सेकेंड टैक्सेबल वैल्यू मेरे पास है. टैक्सेबल वैल्यू. ओके, सेकेंड. ओके, जो मेरे पास है रुपीज़ 90,000. Okay, therefore output tax is equal to 5% of 90,000. Okay, तो यहाँ पे आएगा 5/100 into 90,000. 2 zeros get cancel. 9 5 45, तो वही आएगा 4,500. ओके, सो अभी मेरे को मिला ITC मिला, यहाँ पे आउटपुट टैक्स मिला. देखो GST payable is equal to output tax minus ITC. ओके, तो ये आएगा 4,500 minus 4,250, तो ये आएगा रुपीज़ 250. ओके, सो श्रीमती मल्होत्रा. ओके, what is the amount of GST payable by her? ओके, सो ITC of श्रीमती मल्होत्रा is. ओके, ये आएगा आपका 4,250 and the GST payable by her is rupees 250. Okay, therefore ITC, okay, of Srimati Malhotra. Okay, Srimati Malhotra, okay, is rupees 4,250 and GST payable by her, okay, is rupees 250. Okay, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा. थोड़ा अच्छा लिखो. ओके, मेरे राइटिंग में थोड़ा सा मतलब अप्स डाउन्स रहेंगे, लेकिन आप अच्छा लिखो. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज 4. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सेट 4A. Okay, so we'll learn about the next problem. Six number problem. A company provided Z security services for the taxable value of rupees 64,500. The rate of GST is 18%. Company had paid GST of rupees 1,550 for laundry services and uniform sets. What is the amount of ITC? Find the amount of CGST and SGST payable by the company. Okay, तो मुझे सब कुछ करना है, तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. सोल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पे. सो फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू हम लोग लिखेंगे. फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू, द टैक्सेबल वैल्यू. ओके, टैक्सेबल वैल्यू मेरे पास है रुपीज़ 64,500. ओके, देखो GST मुझे निकालना है. GST अमाउंट ऑफ GST लिखता हूँ यहाँ पे. अमाउंट ऑफ GST. ओके, शॉर्ट में लिखा, फुल लिख दो. ओके, सो इट इज़ 18% ऑफ दिस. ओके, 64,500. ओके, सो 18% निकाल देंगे हम लोग. 100 एंड इंटू 64500. ओके, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. अभी जो बचा है उसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ और जितना भी आएगा लिख देता हूँ. ओके, सो 8 5 44 कैरी किया मैंने. 8 4 ओके, 8 4 32 एंड दिस 36. 3 कैरी किया. 8 6 48 एंड दिस इज 51. ओके,
एक जीरो ले लिया मैंने, 5 4 6 एज इट इज़ लिखा जीरो, ये 1 आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैंने 1 कैरी किया, ये 6 है मेरे पास एंड दिस इज 11। सो 11,610 ओके, जीएसटी जो मेरा था 610 ओके। तो ये मेरा टोटल जीएसटी है, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया है, आईटीसी मतलब कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी का है जो ऑलरेडी पेड किया ओके। कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज ओके। सो आईटीसी ओके इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ओके, इसको बोलते हैं हम लोग के ₹1550 ओके, उन्होंने ऑलरेडी पे किया ओके 1550 ओके। दिस इज़ फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड द यूनिफॉर्म सेट सेक्टर ओके, पे किया उन्होंने। अभी मुझे पेबल फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी ओके। सो दिस इज आईटीसी, देन हम लोग को निकालना है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी ओके। सो मुझे फर्स्ट निकालना पड़ेगा जीएसटी पेएबल, देयरफॉर जीएसटी पेएबल ओके। ये मेरा थे आउटपुट टैक्स है ओके, तो मुझे ये आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट दिस इज आउटपुट टैक्स ओके, अमाउंट ऑफ जीएसटी ओके। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 11,610 माइनस मुझे ये करना पड़ेगा 1,550 ओके। तो चलो इसको माइनस करते, 11,610 से ये माइनस करेंगे 1,550, जीरो तो जीरो रहेगा, 11 माइनस 6 यहाँ पे 5 6 आएगा, कैरी 1 किया, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, तो ये आएगा 10,060 ओके। सो आएगा ₹10,060 ओके। तो ये मेरा आता है जीएसटी पेबल ओके। मुझे इसमें से सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है ओके। तो मैं निकाल दूंगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ओके। तो दोनों मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा ओके। तो जो भी अमाउंट रहेगी निकालेंगे हम लोग ओके। देयरफॉर जीएसटी मेरे पास आ गया ₹1060 ओके, पेएबल ओके। देयरफॉर सीजीएसटी जो रहता है मेरा जीएसटी के हाफ रहता है 10060 डिवाइड बाई 2। तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 550 एंड दिस 30 ओके। देयरफॉर CGST is ₹5,030 okay. Therefore CGST is equal to SGST okay. Therefore SGST is equal to ₹5030 okay. ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, इसको निकाल दिया मैंने, इसको निकाल दिया, मेरी जीएसटी है यहाँ पे। और इनको फाइनली आपको वर्ड्स में लिख देना ओके। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी पेबल बाय कंपनी ओके। देयरफॉर द अमाउंट of CGST and SGST payable by the company, which company okay, the Z Security Services okay, Z Security Services। जिसका नाम भी लिखता हूँ मैं ताकि ऊपर मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, इज ₹5030 एंड ₹5030 रिस्पेक्टिवली ओके। ये आएगा मेरा फाइनल सोल्यूशन ओके। तो मुझे इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। सो जस्ट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, यू विल गेट योर सोल्यूशन। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव सॉल्व इट ओके। क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हमने सॉल्व किया। मे बी देर मे बी चांसेस ऑफ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, सो प्लीज चेक इट वंस एंड देन ओनली प्रोसीड ओके, देन ओनली राइट इट ओके। And this is the question number 6, and now we are going to solve question number 7. Okay, so we'll solve the problem number 7. In this problem, a dealer supplied walkie-talkie set of ₹84,000 with GST to police control room. Rate of GST is 12%. Find the amount of SGST, CGST charged by the dealer. Also find the taxable value of the set. Okay. तो मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है तो मुझे उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे याद रखना है। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी ओके, वॉकी टॉकी भी ₹X ओके, मान लेते हैं X है। सो 12% GST है, देयरफॉर GST okay is equal to 12% of X
तो ये मेरा आएगा 12/100 इंटू एक्स, ओके इंटू एक्स, देयरफॉर ये आएगा 12x/100, ओके ये मेरा हो जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू दे दी मुझे। सो टोटल वैल्यू ऑफ वॉकी टॉकी इज इक्वल टू, मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू आती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी आएगा, ओके दिस इज फॉर्मूला एक्चुअली, ओके सो इट इज गिवन 84,000। तो मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू मैंने x ले लिया, यहाँ पे मेरे पास है 12x/100, तो ये बनेगा 112x/100 और ये आएगा यहाँ पे देखो 84,000, ओके। तो चलो निकालते फिर 112x, ये मल्टीपल बन जाएगा 84,000 इंटू 100 बन जाएगा, इसको मैं वो साइड में लेता हूँ। सो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 84,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112, ओके। तो अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके तो सोचना पड़ेगा मुझे। सो फर्स्ट मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, ओके 2 5 एंड 2 6, इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, 2 4 एंड 2 2, ओके। तो ये आएगा, वापस इसको एक बार रिड्यूस करता हूँ, 2 2 एंड 2 8, तो इसको भी रिड्यूस करता हूँ, 50 कर देता हूँ मैं, नहीं इसको ऐसे ही रखता हूँ, चलो ठीक है, वही कर दिया तो कर दिया, ओके। x इज इक्वल टू 42,000 इंटू 50 आ गया और यहाँ पे आएगा 28, ओके। तो चलो और इसको रिड्यूस करते हैं, 28 को मैं करता हूँ 1 एंड दिस इज 4, इसको मैं 25 कर देता हूँ, वापस एक बार 7 करता हूँ इसको मैं, नहीं अभी हो जाएगा 14 1 ओके 14 1 एंड 14 3 हो जाएगा, ओके। So therefore x is equal to 3 and this 000 and this is 25, okay। So x is equal to आएगा मेरा ₹75,000 आएगा, ओके। तो ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू आ गया, क्या आ गया, देखो टैक्सेबल वैल्यू, ओके। देखो टैक्सेबल वैल्यू तो मुझे मिल गया, देखो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉकी एंड टॉकी, ओके वॉकी टॉकी इज ₹75,000। अभी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे पूछा गया SGST CGST, देखो GST फर्स्ट निकालेंगे, GST इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू, ये निकाल देंगे हम लोग। टोटल है वैल्यू 84,000 है मेरे पास, 75 टैक्सेबल वैल्यू, माइनस कर देते, तीनों जीरो एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ पे आपका दिख रहा है 5, यहाँ पे 4 है, सो 9 आएगा, सो ₹9,000 आएगा आपका GST। देयरफॉर CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST/2, तो 9,000/2, तो ये आएगा ₹4500, ओके। देयरफॉर CGST, ओके CGST ₹4500, therefore SGST ₹4500, okay। once you check it is correct or not, okay। एक बार आप चेक कर लो कि ये सही है क्या नहीं, और उसके बाद में इसको प्रोसीड करो, ओके। तो ये तो मेरा प्रॉब्लम नंबर 7 जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। Okay, so we'll solve the 8 number problem. In this problem, a wholesaler purchased electric goods for the taxable amount ₹1,50,000. He sold it to the retailer for the taxable amount ₹1,80,000. Retailer sold it to the customer for the taxable amount ₹2,20,000. Rate of GST is 18%. Show that the computation of GST in the tax invoice of sales. Also find the payable CGST and SGST for the wholesaler and retailer. Okay. So we'll solve this problem. This is actually okay intertrade problem, okay. So now see the taxable value, okay. First we'll solve wholesaler, for a wholesaler, okay, for a wholesaler, okay, wholesaler, okay. First taxable value, the taxable value, okay, taxable value ₹1,50,000, okay. So therefore this is known as input टैक्स क्रेडिट, हम लोग निकालेंगे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC बोलते हैं जिसको हम लोग। 18% ऑफ दिस रुपीज़, ओके, 1,50,000,
सो जो भी आएगा 18/100 कर देते हैं यहाँ पे 1,50,000 हम लोग निकालेंगे, 0 0 गेट कैंसिल। सो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 18 × 15। ओके, सो 5 4 टी जा 4 कैरी किया मैंने, 5 1 जा 9 है यहाँ पे, 8 1 जा 8 एंड 1, ओके 0 7 एंड दिस इज 2 7। ओके, सो रुपीज़ 227,000। ओके, ये मेरा है ITC। ओके, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, और अभी मुझे क्या करना है, ये होलसेलर था। ओके, अभी ही सोल्ड इट टू द रिटेलर। ओके, सो आउटपुट टैक्स मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकालता हूँ, 18% ऑफ, ओके 1,80,000। ओके, तो चलो ये होलसेलर के बारे में हम लोग लेंगे, 18/100 इंटू 18 एंड दिस 0 0 0। ओके, 18 लाख, 1 2 3। ओके, एक 0 चाहिए और। ओके, तो एक 0 दे दें। ओके, 80,000, 1,80,000। So 2 zeros get cancelled. So this we have to multiply this again, 18 into 18. So what is the square of 18 into 18? You know that 32. Okay, 18 into 18. Okay, you check it. 18 into 18. 8 8 is 64. Remaining 6. 8 1 is 8 and this is 14 and again 8 1 is 8 and this is 1. So 4. This is 2 and 324. Rupees 324। ओके, 32,400। ओके, ये आ गया उसका। सो मुझे जो निकालना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो लिखेंगे हम लोग टैक्स इनवॉइस लिखेंगे यहाँ पे। देखो टैक्स इनवॉइस फॉर होलसेलर। ओके, फॉर होलसेलर। ओके, इसको बनाएंगे हम लोग, ये टैक्स इनवॉइस बनाते हैं हम लोग। इसको मैं डबल डॉट कर देता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस आएगा, ये आपका GST। ओके, दिस इज ओके GST। ओके, सो CGST एंड SGST इज इक्वल टू GST/2। तो ये आएगा मेरा 32,400 डिवाइड बाई 2 और ये मेरा बनता है 16 ओके 1,200। ओके, ये मेरा टैक्स इनवॉइस उसका दिखाई देगा। ओके, इतना उसने पे किया, मतलब आउटपुट टैक्स। ये मेरा आउटपुट टैक्स मेन यहाँ पे आएगा। एंड नाउ विल फाइंड द GST पेएबल। देयरफॉर GST पेएबल मेरा फॉर्मूला मुझे पता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो मेरा ये 32400 माइनस यहाँ पे मैंने 27,000 निकाला था। तो यहाँ पे जो भी आएगा मेरा अमाउंट मैं लिख देगा 27,000। अगर मैं माइनस कर देता हूँ 32 से, ओके, तो मुझे मिलता है 5 मिलता है। ओके, सो आएगा 5,400। ओके, ये मेरा GST आ गया, GST पेबल। अभी मुझे ऑल्सो फाइंड द पेबल CGST एंड HGST फॉर होलसेलर। ओके, सो CGST पेबल इज इक्वल टू SGST पेबल इज इक्वल टू दिस 5,400/2। तो ये आएगा ₹27 ओके 100। ओके, और 2,700 ये आएगा मेरा। ओके, ये मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये फर्स्ट था मेरा होलसेलर। ओके, सेकंड मुझे आना है यहाँ पे रिटेलर की तरफ। ओके, सेकंड मेरा है पॉइंट फॉर रिटेलर। ओके, फॉर रिटेलर अभी हम लोग लेंगे फॉर रिटेलर। ओके, रिटेलर तो सेम मुझे करना है। द टैक्सेबल वैल्यू मुझे पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्स्ट निकालेंगे। देयरफॉर ITC मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 18% ऑफ। ओके, दिस फर्स्ट, अभी ये सेकेंड वाला फर्स्ट आएगा 1,80,000। ओके, ये आएगा फर्स्ट। सो 18/100 इंटू 1,80,000 अगर मैं इसको कर देता हूँ तो मुझे मिलता है ये अभी 324000। ओके, तो ₹32,400 ये आएगा मेरा। ये था आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ओके, तो ये मैं निकालूंगा 18% ऑफ दिस 2,20,000। 18% ऑफ 2,20,000। ओके, ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। सो 18/100 आएगा यहाँ पे
और 2,20,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो 18 इंटू 22 कर देता हूँ मैं, 8 टू 16 कैरी 1 किया, 2 1 2 एंड 3 0, ये भी 6 3 आएगा, 693। ओके, तो ये आता है मेरा ₹39,600। ओके, तो मैं एक बार ये निकाल देता हूँ। ओके, इसको मैंने निकाल दिया यहाँ पे, तो टैक्स इनवाइस मेरा बनेगा यहाँ पे। ये मैंने टैक्स इनवाइस फॉर रिटेलर निकालना है मुझे, देयरफॉर टैक्स इनवाइस ओके फॉर रिटेलर मैं लिखता हूँ यहाँ पे जगह का मैं, तो ये सेम आएगा यहाँ पे मैंने जो लिखा है, CGST GST SGST इज इक्वल टू दिस टोटल अमाउंट 3900 डिवाइड बाई 2, तो जो भी आएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा, सो दिस इज 19,500। ओके, अभी ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अभी GST पेबल निकालना है वापस, यहाँ पे मुझे GST पेबल निकालना है मुझे, तो मुझे आउटपुट टैक्स माइनस ITC करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट टैक्स था ₹39,600, माइनस में करूँगा यहाँ पे इनपुट टैक्स मैंने जो निकाला ₹32400। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर दें हम लोग। ओके, 2 जीरो एज इट इज़ आएंगे मेरे, 6 - 4 यहाँ पे 2 आएगा, 9 - 2 यहाँ पे 9 - 2 यहाँ पे 7 आएगा, एंड ₹7,200 आएगा। ओके, तो अभी मुझे CGST एंड HGST पेएबल भी निकालना है। देखो CGST पेएबल इज इक्वल टू SGST पेएबल, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, इज इक्वल टू दिस 7200 डिवाइड बाई 2, तो रुपीज़ आएगा मेरा या 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा 00। ओके, तो ये मेरा रहेगा सोल्यूशन। ओके, इन दिस वे आई हैव टू सॉल्व दिस। थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, लेंदी मतलब थोड़ा आप अच्छी तरह से लिख लो, यहाँ पे जगह शॉर्ट है इसलिए मैंने इसको एडजस्ट करके लिखा है। आपको पूरा अच्छी तरह से इसको लिखना है, हर एक स्टेप को लिखो, और कुछ वर्ड्स आपको ऐड करने हैं तो उसको उनको ऐड करो, एंड देन यू जस्ट मेक द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। ओके, सो दिस इज स्टार मार्क, बट इट इज़ वेरी इजी। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बहुत ईजी है, ताकि हम लोग को बताए कि ये प्रॉब्लम जो है आपके बेस जो कंटेंट है, बेसिक कंटेंट, उसके ऊपर मतलब बेस्ट है। ओके, सो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 8 वी हैव सॉल्व इट। हम लोग ने 8 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 9 एंड फाइनली प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करेंगे, एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट। Okay, we'll solve the next problem, problem number 9. In this problem, Anna Padil, okay, Thane Maharashtra supplied vacuum cleaner to a shopkeeper overseas Mumbai for the taxable value of ₹14,000 and GST rate of 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST rate for the 16,800. Find the following. Okay, so हम लोग कुछ दिया है, amount of CGST and HGST shown in the tax invoice by Anna Padil. Okay, so we'll solve this first. Okay, so one by one. First, I will write the taxable value of vacuum cleaner. Okay, of vacuum cleaner. Okay, ₹14,000. Okay, so therefore GST, what is GST? 28% of 14,000. Okay, जो भी आएगी हम लोग लिख लेंगे यार। तो मैं इसको निकालता हूँ 28/100 इंटू 14,000। ओके, तो ये 2 जीरो जाएंगे, 14 एंड 28, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आएगा अमाउंट मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो चलो 28 इंटू 14 करते हैं हम लोग। 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी किया, 4 3 ज़ा ओके, दिस इज 11, देन 8 एंड दिस 2। ओके, सो 2, देन दिस इज 9 एंड दिस 3। ओके, सो 3920। ओके, दिस इज GST। ओके, तो मुझे जो नहीं चाहिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, सो ये GST आ गया मेरा। ओके, सो मुझे लिखना है अमाउंट ऑफ CGST एंड HGST, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST shown in tax invoice, shown in the tax invoice, okay, by Anna Padil. Okay, Anna Padil is okay, this 3920 डिवाइड बाई 2, जो भी आएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा
18 and 2 6, ओके। तो ये अमाउंट आएगा आपका टैक्स इनवॉइस का, ओके। अभी ये था अन्ना वाडिल के लिए। अभी नेक्स्ट मेरा जो है वो है शॉपकीपर, ओके। सेकेंड मेरा पास है शॉपकीपर, ओके, फॉर शॉपकीपर, okay. This GST is paid, actually this GST is paid by shopkeeper, okay. So this is a ITC, okay, input tax credit for shop. So ITC, input tax credit, okay, for shopkeeper, okay, for shopkeeper is equal to this 3920, ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, ओके। नाउ मुझे क्या करना है, कस्टमर को भेजता है वापस शॉपकीपर सोल्ड टू कस्टमर एट द सेम जीएसटी रेट 16,800। नाउ सेकेंड जीएसटी, ओके, टैक्सेबल। तो मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ सी जीएसटी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वॉस, ओके। देयरफॉर यही अमाउंट आएगा आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अभी जो वसई का शॉपकीपर है, ओके, व्हाट इज द सी जीएसटी एज पेड बाय द शॉपकीपर इन वसई, ओके, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ओके। सब निकालें तो मुझे सेकेंड, सो टैक्सेबल वैल्यू मेरे पास है सेकेंड, देयरफॉर जीएसटी, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट जीएसटी में निकालता हूँ जीएसटी, ओके, इज इक्वल टू 28% ऑफ दिस 16,800, ओके, मैं निकालूंगा। देयरफॉर 28/100 और यहाँ पे 16,800, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 168 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 168 28 8 8 जा 64, 6 कैरी किया मैंने, 8 6 जा 48, ओके, 48 एंड दिस 654, ओके, अगेन 5 कैरी किया, 8 1 जा ये 13 है, 0 ले लिया, 2 8 जा 16 जा 1 कैरी किया, 13 जा 1 कैरी किया, 2 1 जा 2 एंड 3, ओके। सो 4 दिस 0 एंड दिस इज 1 7 एंड दिस 4, ओके। तो ये मेरी अमाउंट है ₹4,700, ओके। तो ये मेरी जीएसटी, ओके, जीएसटी। नाउ मेरा आईएमपी पॉइंट यहाँ पे व्हाट इज अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वॉस, ओके। ये मेरा जीएसटी का अमाउंट है, जीएसटी, ओके। देयरफॉर मुझे सीजीएसटी एंड एचजीएसटी निकालना है, लेकिन मुझे जो जीएसटी पेएबल है फर्स्ट वो निकालना पड़ेगा। देयरफॉर जीएसटी पेएबल निकालेंगे हम लोग। ये मेरा आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स इसको ही बोलते हैं हम, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ओके। इसको तुम लोग आउटपुट टैक्स लिख दो, ये चाहिए तो यहाँ पे, ओके। सो इट इज़ आउटपुट टैक्स 4704 माइनस मेरे पास था 3920, ओके। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, जो भी आएगा लिखूँगा, 4 - 0 4 ही रहेगा, एंड दिस इज 2 कैन नॉट माइनस, तो इट इज़ 8 कैरी 1 के 10 बन गया, 17 माइनस दिस 10, ओके। तो ये 7 आएगा, ओके। तो आएगा 784, ये मेरा जीएसटी, ओके, जीएसटी पेएबल। देयरफॉर सीजीएसटी एसजीएसटी इज इक्वल टू 784 डिवाइड बाय आएगा 2, सो रुपीज़ 3 जा देन 9 जा 3 जा देन 9 जा, राइट ना, ओके, 9 जा एंड देन 2 जा, ओके। सो 392, ओके। तो अभी मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर इन वॉस, ओके। सो ये था अमाउंट, ओके। 1 सेकेंड, ओके। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे आपका ये जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर है, ओके। दिस अमाउंट इज जीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी पेड बाय एंड दिस इज जीएसटी, ओके। देयरफॉर चार्ज जीएसटी निकालेंगे, देयरफॉर सीजीएसटी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर, ओके। वो निकालेंगे हम लोग पहले, शॉपकीपर जो ऊपर ही मुझे निकालना चाहिए था एक्चुअली, इज इक्वल टू दिस अमाउंट 4704 डिवाइड बाई 2, तो जो भी आएगा 4 2 जा, ओके, 4 3 जा, देन 4 5 जा, एंड दिस इज, ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर, ओके, एंड द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर ये अलग आएगा आपका, ओके। देयरफॉर द जीएसटी CGST and SGST paid by shopkeeper, okay, shopkeeper, okay, when paid by shopkeeper at the time of filing, return, okay, at the time of filing return, filing the return
इज रुपीज़, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की 392, ओके 392 एंड 392 रिस्पेक्टिवली, 392 एंड रुपीज़ 392 रिस्पेक्टिवली, ओके। और टोटल आएगी 784, दैट इज इट इज़ नथिंग बट रुपीज़ 784, ओके। ये ऐसा आपको लिखना है, ओके। थोड़ा सा मैंने इसको उलट कर दिया, आप थोड़ा इसको ठीक ठाक कर दो, ओके। जस्ट यू रीअरेंज दिस एज द सीक्वेंस एज पर योर एबिलिटीज़, इसको रीअरेंज करो थोड़ा, और इसको इससे भी बेटर लिख दो तो हो जाएगा। थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लो और इसको एक बार रिवाइज कर दो, आपका ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर था 9, जिसको मैंने मेरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, अब आपकी तरफ से सॉल्व करने की, बस जस्ट बेस को आपको एक बार अंडरस्टूड करना है, बाद में आप खुद कर सकते हो, ओके। तो ये था 9 नंबर प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट, ओके 4A, उसको सॉल्व करेंगे 10 नंबर प्रॉब्लम, एंड देन विल कंप्लीट दिस प्रॉब्लम सेट 4A, ओके, एंड देन विल स्टार्ट 4B। ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसमें बहुत कुछ दिया, मैंने कुछ भी लिखा नहीं, मुझे जितना चाहिए उतना मैंने लिखा है। और प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर देखो, जिस 12% है टैक्स इनवाइस बनाना मुझे 1 2 3 होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर का प्राइस मुझे निकालना है, ओके। टैक्सेबल वैल्यू 500 या 5000 है, देन 6000, देन 6005, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे हम लोग। फर्स्ट, ओके, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। फॉर होलसेलर मैं लिखता हूँ फॉर होलसेलर, ओके, होलसेलर, ओके, होलसेलर। मुझे जीएसटी पेड भी कितना किया वो भी निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू है मेरे पास, टैक्सेबल वैल्यू, ओके। फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ टैक्सेबल वैल्यू है मेरे पास ₹5000, ओके। जीएसटी, देयरफॉर जीएसटी निकालना है, जीएसटी इसको ही बोलेंगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो फर्स्ट देता है इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है वो क्रेडिट के आईसीटी बोलते हैं उसको हम, जीएसटी पेड, ओके, इज इक्वल टू आएगा 12% ऑफ दिस 5000, तो 12 अपॉन आएगा 100 इंटू 5000 आएगा, ओके। तो ये 2 जीरो जाएंगे, तो दिस इज 600, ओके। ये आईसीडी रहा, ओके। अभी जो मेरा सेकेंड था वो डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, द टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स जो इन्होंने कलेक्ट किया, ओके। तो ये आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 6000 को भेजा है, तो ये 12% ऑफ 6000 हम लोग को निकालना है, ओके। सो 12 अपॉन 100 इंटू 6000 निकालेंगे हम लोग, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, सो इट विल बी 720, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे जीएसटी पेएबल निकालना है, जीएसटी पेएबल निकालेंगे हम लोग, पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, टैक्स क्रेडिट, उसको आईसीटी भी बोलते हैं हम लोग, आईटीसी, ओके। तो यहाँ पे मेरा है 720 माइनस 600, ओके, तो आएगा 120, ओके। सो दिस इज पेड, ओके, दिस इज पेड बाय द सेकेंड वन, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। उसने इतना दे दिया, ओके, इतना, ताकि ये था मेरा होलसेलर का, ओके। होलसेलर ने क्या किया, 5000 में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, होलसेलर को 5000 में मिला, उसने 6000 में बेचा, 6005 में बेचा। सो जीएसटी पेएबल यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। सेकेंड हम लोग आते हैं, सेकेंड की तरफ आएंगे हम लोग। सेकेंड, अभी मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर है, और एक मेरे पास 2 है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं निकालता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, टैक्सेबल वैल्यू मुझे पता है, यहाँ का आईटीसी मुझे पता है फर्स्ट, ओके। उसका आईटीसी कितना है, 720, ओके, ताकि उसने जितना दिया वो 720। अभी मुझे आउटपुट टैक्स निकालना, आउटपुट टैक्स निकालेंगे हम लोग। तो ये 12% ऑफ आएगा, ये 6500, ओके, 6500, ओके। तो इसको निकालते हैं हम लोग, 12 अपॉन 100 इंटू 6500, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 65 इंटू 12 कर देते हैं, ओके। 12 5 ज़ा 60, 60 ज़ा 0, 6 इज कैरिंग, ओके। 12 6 ज़ा 72, ओके, एंड 72 एंड दिस 678, ओके। तो ये आएगा मेरा ₹780, ओके। तो आ गया मेरा ये आउटपुट। देखो यहाँ पे जीएसटी पेएबल आएगा यहाँ पे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ओके। सो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ओके। सो ये मेरा 780 माइनस आएगा यहाँ पे 720, ओके, ₹60, ओके।
तो CGST HGST आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको अगर यहाँ पे पूछा गया तो ओके, मुझे पूछा गया रहेगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। आई थिंक इट इज़ नॉट आस्क इन द क्वेश्चन। ओके, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। नहीं, CGST नहीं, कुछ नहीं पूछा। ओके, अभी ये जो यहाँ पे पूछा था आपको, राइट विच ऑफ द इनवाइसेस इशूड आर B2B। ओके, तो ये जो इनवाइस है, दिस इज एन इनवाइस issued as B2B। ओके, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, और ये जो इनवाइस है भी, दिस इज एन इनवाइस, दिस इज एन इनवाइस, मैं अपनी तरह से लिख रहा हूँ, इशूड, ओके, इशूड एज B2B। ओके, ये भी इनवाइस B2B। ओके, तो अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ओके, कहाँ तक पहुँच गए कि हम लोग को यहाँ पे ये जो प्राइस मिल गया, ओके, 60। तो अभी मुझे कस्टमर के लिए प्राइस निकालना है। इसका क्या करना है, अभी यहाँ पे जो 12% लगा है 780, उसको पकड़ के मुझे कस्टमर के लिए प्राइस निकालना है। ओके, तो फर्स्ट मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। ओके, सो दिस इज ए टैक्स, दिस इज ए टैक्स इनवाइस कर देता हूँ मैं, ये टैक्स इनवाइस। ओके, यहाँ पे तो सही रहेगा, टैक्स इनवाइस कर देते हैं यहाँ पे, टैक्स, दिस इज ए टैक्स इनवाइस। ओके, ये नाम डालो, टैक्स इनवाइस। सो दिस इज ए टैक्स इनवाइस इशूड एज B2B। एंड नाउ विल राइट द पर्सन। ओके, पर्सन, ओके, पर्सन, देन यहाँ पे आएगा GST एंड यहाँ पे आएगा CGST, यहाँ पे आएगा SGST। आप इसका बना दो। ये होलसेलर है मेरे पास, होलसेलर। ये मेरे पास सेकेंड था, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पर्सन, और ये मेरे पास देन है रिटेलर। ओके, तो मैं इनके लिए टैक्स इनवाइस, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखूँगा मैं, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ जितना भी आएगा। ओके, तो GST मैंने फर्स्ट था मेरा 600, तो इसमें CGST आएगा, ये रुपीज़ में लिख दो आप यहाँ पे, ये भी रुपीज़ में लिख दो और ये भी रुपीज़ में लिख दो, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये आएगा 300 एंड 300। ओके, देन मेरे पास था डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना पे किया है, आपने देखा 120 पे किया है। सो 120, तो यहाँ पे आएगा 60 एंड 60। ओके, एंड लास्ट कितना पे किया, 60। ओके, तो ये 60 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 30 एंड 30। ओके, तो ये था मेरा GST। अभी इसका मैं टोटल कर देता हूँ, इसको अगर मैं जोड़ दूँ टोटली। ओके, तो ये 60 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा तो अच्छा रहेगा जोड़ने के लिए। तो ऐड करो, ये आपको आएगा 780। ओके, टोटल आएगा 780। ओके, जो मेरे पास यहाँ पे आएगा टोटल 780। ओके, और ये अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इसको 00, तो ये 390 के 390, और ये भी आएगा 390। ओके, तो ये मैंने टैक्स इनवाइस बनाया। ओके, टैक्स इनवाइस का जो मुझे बनाना है टैक्स इनवाइस, जिसको मैंने यहाँ पे बना दिया, आप स्केल लेके अच्छी तरह से इसको बना दो। ओके, सो ये मेरा टैक्स इनवाइस बन गया। यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, प्राइस निकालना है उसका, क्या करना है मुझे, प्राइस निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन इज आस्क देयर एट द एंड, what amount is paid by customer? So amount paid by customer, therefore the amount paid by customer, okay, customer is equal to taxable value, taxable value, last taxable value मेरा निकला है प्लस GST। ओके, GST जो भी मैंने पे किया लास्ट में। ओके, 780 GST, टैक्सेबल वैल्यू आपकी लास्ट है 6500। ओके, 6500 एंड 780। ओके, इनको ऐड कर दो आप, जो भी आएगा ये 0 ही रहेगा, ये 8 रहेगा आपका, ये 7 एंड 5 2 आएगा आपका, 1 कैरी किया, तो ये आएगा 7280। ओके, इतना आता है। ओके, तो ये आपका इस तरह से सोल्यूशन आएगा। This tax invoice is known as B2 business to business. Second one is also business to business. And this tax invoice, okay, the tax invoice between a retailer and customer. Okay, customer is B2C. Okay, business, okay, to कस्टमर। ओके, इस तरह से बनेगा। तो ये आपको इससे भी अच्छा लिखना पॉसिबल होगी, बिकॉज मेरे पास जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, मैं जो लिख रहा हूँ। ओके, सो मैं कंसिस्टेंसी के साथ लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, बट ऑन नोटबुक यू जस्ट ट्राई टू राइट एट योर बेस्ट। and this is the last problem from the problem set 4a. We have completed it, and in the next video we will discuss about the problem set 4b, and then finally complete this lesson.
मे बी कुछ भी मिस्टेक्स रहेंगी तो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ओवरलैप और ट्राई टू जस्ट करेक्ट इट। ओके, करेक्ट करो, कुछ भी गलत मत करो आप लोग। एंड आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।